हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 29 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल्स। देन हम देखेंगे पद्मा अवार्ड्स कमेटी के बारे में, हाल ही में चर्चा में रहा पंडोह डैम के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे फ्रेंच एडलमैन अवार्ड 2026 के बारे में। लॉस एंड डैमेज फाइनेंस ये टर्म काफी चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में। शुरू करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल। यहाँ पर ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दीज आर परमानेंट open membership think tanks established by the World Economic Forum to address long-term global risks. And second, the insights generated by these councils are primarily based on interdisciplinary research and evidence rather than subjective opinions. And third, the United Arab Emirates has been designated as the strategic partner host for the annual Global Future Council's meetings for the period 2026 to 2030। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एक टाइम बाउंड और इनविटेशन ओनली थिंक टैंक है, ना कि ओपन मेंबरशिप थिंक टैंक। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। The Global Future Councils represent the World Economic Forum's flagship multi-stakeholder knowledge network, and a critical distinction is that these are time-bound and invitation-only think tanks, not permanent or open membership bodies as suggested in the statement. Members typically serve 2 years term, with the current cycle running from March 2025 to December 2026. This structure ensures a fresh influx of ideas and prevents stagnation in policy recommendations. The GFCs are characterized by an evidence-based approach, and they prioritize data, research, and factual analysis over mere opinion to ensure that the policy-relevant insights provided to governments and institutions are robust and credible. Their interdisciplinary nature allows for systems thinking, bridging silos to address complex, interconnected global challenges like climate change and technological disruption. ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा because as per the recent developments where the United Arab Emirates and World Economic Forum signed a memorandum of understanding, and under this agreement, Dubai will host the annual GFC meetings for the next 5 years. और ये होगा from 2026 to 2030. This partnership underscores the UAE's role as a global hub for future-oriented dialogue, and since its inception in 2013, the network has grown significantly, engaging over 12,000 experts across 900 councils. आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल है इसको एस्टैब्लिश किया गया 2013 में, एंड एज पर द रीसेंट अग्रीमेंट 2026 से 2030 के लिए जो होस्ट सिटी होगी वो होगी यूएई, वो होगी दुबई, जो कि ये सिटी स्थित है यूएई में। इस काउंसिल का जो एम है वो है आइडेंटिफाई करना इमर्जिंग ट्रेंड्स, risks and technologies shaping the global future, and also to translate expert knowledge into actionable policy relevant insights. It also supports governments and institutions in
building resilient, inclusive, and sustainable development models. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Padma Awards Committee, consider the following statements. So यहाँ पर ये जो पद्म पुरस्कार समिति है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कमिटी इज हेडेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। And second, the recommendations of the committee are submitted to the Prime Minister and the President of India for approval. And third, the total number of awards to be given in a year, in excluding posthumous and NRI awards, should not exceed 150. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है पद्मा अवार्ड्स से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो पद्मा अवार्ड्स कमेटी है ये हेड की जाती है बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो अवार्ड्स हैं इनका टोटल नंबर एक्सीड नहीं होता है 120 से। इसमें पोस्थमस और एनआरआई अवार्ड्स इंक्लूड नहीं होते हैं। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So the Padma Awards Committee is constituted every year by the Prime Minister and is headed by the Cabinet Secretary, not the Vice President. And once the committee makes its recommendations, they are processed and submitted for approval to the Prime Minister and then the President. So the total number of awards to be given in a year is capped at 120, and this limit does not include posthumous awards or those given for foreigners, NRIs, OCIs. So these awards are announced on the eve of Republic Day annually. So अभी रिसेंटली ये चर्चा में रहा बिकॉज ऑन द ईव ऑफ 77th रिपब्लिक डे 2026 प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है पद्मा अवार्ड्स की लिस्ट जिसमें 131 रेसिपिएंट्स हैं, जिसमें से 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। सो पद्मा अवार्ड्स के बारे में अगर बात करें तो इनको इंस्टीट्यूट किया गया 1954 में। इनिशियली 2 सिविलियन अवार्ड्स क्रिएट किए गए थे, भारत रत्न और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास इस तरीके से था। देन इन 1955 इसको रीनेम किया गया 3 में, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो दीज अवार्ड्स आर गिवन अक्रॉस डाइवर्स डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस एंड एक्सेट्रा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो all individuals irrespective of race, occupation, rank or gender including Indian citizens, foreigners, NRIs, PIOs and OCIs are eligible for these awards. आप ध्यान रखेंगे 2026 में 131 जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो प्रदान किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Pandoh Dam that was recently seen in the news constructed on which river? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा जो पंडोह बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं सतलज, रावी, ब्यास या फिर चिनाब। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पंडोह डैम ये बनाया गया है ब्यास रिवर पर।
आप देख सकते हैं, द रिलीज ऑफ सिल्ट लेडन वाटर फ्रॉम पंडोह डैम इनटू द सतलज रिवर इंस्टेड ऑफ व्यास रिवर हैज कॉज्ड ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट. So this dam is an embankment and concrete gravity dam built on the Vyas River in Mandi district of Himachal Pradesh, about 10 kilometers from Manali. So it was completed in 1977 under the Byas project, mainly for hydroelectric power generation. And the dam is about 76 meters high and 492 meters long and follow a run of the river design. So Vyas River water is diverted through 38-kilometer long canal and tunnel to the Dihar powerhouse and then released into the Satluj River. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो पंडो डैम है, ये निर्मित किया गया है ब्यास रिवर पर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which government department has been named as the finalist for the 2026 French Edelman Award for its Anna Chakra initiative? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, अन्न चक्र पहल के लिए किस सरकारी विभाग को 2026 के लिए फ्रांच एडलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये जो नामित किया गया है फॉर फ्रेंच एडलमैन अवार्ड, ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. आप देख सकते हैं, the Department of Food and Public Distribution has been named as the finalist for the 2026 French Edelman Award for its Anna Chakra initiative. So the Anna Chakra is a supply chain optimization tool developed under India's public distribution system. And it is an operations research based decision support system that optimizes state-wise food grain logistics. So the initiative was created through a government United Nations academia partnership involving Department of Food and Public Distribution, the United Nations World Food Programme in India, and the Indian Institute of Technology, Delhi. So it uses advanced algorithms to identify optimal transport routes and ensure smooth movement of food grains across the supply chain. सो आपने देखा कि ये जो अन्न चक्र इनिशिएटिव है, ये खाद्यान्नों की जो ढुलाई, भंडारण और वितरण है, उसको वैज्ञानिक तरीके से अनुकूलित करने के लिए चलाया गया है. आप ध्यान रखेंगे, ये जो फ्रेंच एडलमैन अवार्ड है, इसको ऑपरेशन रिसर्च का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Loss and damage finance is best described as which of these? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो टर्म है लॉस एंड डैमेज फाइनेंस, ये निम्नलिखित में से किसको सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करता है? आपके ऑप्शंस हैं, वॉलेंट्री प्राइवेट इंश्योरेंस, सेकंड मार्केट बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग, थर्ड अ डेवलपमेंट एड सब्स्टिट्यूट या फिर अ क्लाइमेट जस्टिस मैकेनिज्म. आपको बताना है, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो लॉस एंड डैमेज फाइनेंस है टर्म, ये इनमें से सबसे अच्छे तरीके से किसको परिभाषित करता है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो ये क्लाइमेट जस्टिस मैकेनिज्म है. आप देख सकते हैं,
The loss and damage finance addresses irreversible and unavoidable climate impacts that cannot be managed through mitigation or adaptation alone. So it is grounded in equity and historical responsibility, recognizing that vulnerable countries contributed least to climate change. So it is distinct from insurance as support is not based on premiums or risk sharing contracts. It is separate from carbon markets and it does not involve emissions trading or offset mechanism. So it is not a substitute for development aid, but an additional finance stream linked to climate justice and CBDR. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज कन्फर्ड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। And second, the award includes a cash prize, a certificate, and a medal and is open to institutions as well as individuals, including foreign nationals and organizations. And third statement is the award is presented on 23rd of January, the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं द अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू ऑनर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। So it carries a monetary award, certificate, and a medal and is open to individuals and institutions, including foreign entities. और आपने देखा कि ये जो अवार्ड है इसको अनाउंस और प्रेजेंट किया जाता है ऑन 23rd ऑफ जनवरी, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस के रूप में। सो ये हाल ही में चर्चा में रहा बिकॉज रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेलेक्टेड सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी in the institutional category and the Lieutenant Colonel Sita Ashok Shell in the individual category for the Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar 2026. सो आपने देखा कि ये जो अवार्ड है ये अवार्ड दिया जाता है टू ऑनर इंडियन सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर एक्सेप्शनल करेज एंड डेडिकेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आप ध्यान रखेंगे कि 23rd ऑफ जनवरी को ये अवार्ड प्रदान किया जाता है और 23rd ऑफ जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी कि ये पराक्रम दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।